वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज एन अल्टरनेट नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। यानी अगर एक मेमोरी लोकेशन का को अगर आप रिप्रेजेंट कराओगे, सो मेमोरी लोकेशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल्स। ओके, सो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? द नंबर्स इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द नंबर्स व्हिच इज फ्रॉम 0 to 9, and in characters it will go from A to F। तो दिस इज द रेंज। ये रेंज के बीच में बेसिकली आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, वो इनके बीच में बेसिकली कोई भी एक कैरेक्टर होगा जो कि उस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कराएगा। और ये अकेला एक कैरेक्टर नहीं होता, इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सो बेसिकली कुछ 7 8 9 10 ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आपको हर एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाओगे आप। सो फॉर एग्जांपल, एक मेमोरी लोकेशन का अगर मैं एक एड्रेस लिखूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस: 1A to EBF09H। Okay, so this is a name generally, or this how basically a memory location is uniquely identified. Okay, and this is called as a memory address. Okay, this is nothing but it is a location address where the data is basically stored. So ये याद रख पाना is a very difficult task. So instead of remembering this name, what we do is that we replace the name by a variable. So what is a variable? Variable is nothing but it is an alternate name given to a memory location. So ये alternate name दे देते हैं हम. So this is nothing but it is an alternate name. So instead of remembering this whole thing, what we need to remember is that we are replacing it with A. So अगर आपको A याद होगा तो आप बड़े आसानी से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। सो ये जो ए है इसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इस ए में क्या स्टोर होता है। सो आइदर यू कैन स्टोर इंट, यू कैन स्टोर byte, you can store short, etc. Okay, so these are called as data types. So we have got a variable, we have got a data type। okay, so data type जो है ये दो टाइप का होता है, one is called as a primitive, other is called as a non primitive। so primitive data type में टोटल कितने primitive data type है? Have we got the number? How many primitive data types are there in total? 8। 8. okay, and non-primitive data type are basically a large number। okay, but generally जो सबसे widely used that is called as a string। okay, so in non-primitive type the most widely we use is called as a string। there are more non-primitive data type, जितना आप बनाना चाहो उस हिसाब से आप बना सकते हो, but generally the most one is the string। one second ना guys, just a second। हाँ मैं एक सेकंड। okay, fine। In primitive data type what we have got uh, eight primitive data types। so eight primitive data sorry primitive data type में जो सबसे पहले we are talking about the numbers। so numbers have got four different types। okay, so numbers में कौन कौन से है? the first one that we have studied is called as byte। the second one which we'll be studying will be called as short। the third one that we'll be seeing is called as int, okay, which you already know। and the last one will be called as, what will be the last one called in numbers, generally in numbers? Float. sorry, कौन सा होगा? long। Float. long। okay, then number होने के बाद we'll go to the next one which is called as a decimal number बोलो या floating number बोलो। okay, so generally we call it as a floating numbers। floating number का मतलब कोई बता सकता है what is a floating number? Decimals. decimals, but फ्लोटिंग नंबर बेसिकली डेसिमल्स को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ओके, देयर इज वी यूज अ वर्ड फ्लोटिंग किसी एक मकसद के पीछे, एक मकसद है उसके पीछे फ्लोटिंग लिखने के लिए। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जनरली डेसिमल्स, इफ आई राइट 2.29, इज इट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? okay, Yes. if I write let's say 32 yeah 3.27, is it a floating point number?
Yes. If I write 0.17, is it a floating point number? No. Yes. These are called as fixed point numbers. These are called as fixed point numbers. It is not a floating point number. Okay, these are called as fixed point numbers. Floating point number क्या होता है? If I write 2.29, if I write 22.7, if I write 0.239, then it will be called as a floating point number, which means जो पॉइंट है इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग. सो कभी एक प्लेस पे होगा, कभी सेकंड प्लेस पे होगा, कभी फर्स्ट प्लेस पे होगा, एटसेट्रा. ओके, सो दैट मींस द पॉइंट इज फ्लोटिंग, वेयर एज इन दिस केस, द फर्स्ट केस, द पॉइंट का जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड, सो दैट इज व्हाई इट विल बी considered into a fixed point numbers. Okay, so when we talk in computers, while representing it, we generally call it as a floating point numbers, but while storing it, we generally use a fixed point numbers. Okay, so दो अभी ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए. अगर आपने कैलकुलेटर अगर आपने ओपन किया होगा, किसी को अगर पता है कैलकुलेटर के अंदर इफ यू डू अ लार्ज नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, फॉर एग्जांपल 1989899, ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर ले लो आप 10-12 डिजिट का, और उसको वापस 10 से 12 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? You generally get a number which is like 1 point something 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 000 into 10 raised to power you get, right? Something ऐसा कुछ आपको आता है, 32 या ऐसा कुछ नंबर आपको मिलेगा बेसिकली. ओके, सो ये वाला जो पार्ट है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी, ये पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटिसा, एंड दिस वाला पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट. ओके, और आप जब भी देखोगे, जब भी आप बड़े नंबर का कैलकुलेशन करोगे, हमेशा पॉइंट जो है वो हमेशा पहले डिजिट के बाद रहेगा, हमेशा. कभी भी कैलकुलेटर में अगर आप बड़े नंबर को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा पॉइंट विल कम आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट. So while representing it, while showing it on the screen, it will always be a fixed point number. While basically while putting into the number, we generally store it in the point of floating point numbers. Okay, so calculate होने का प्रोसेसर जो है आपका जब आउटपुट देगा, it generally gives you the output in the form of floating point numbers, sorry, fixed point numbers. While performing the processing onto it, आप fixed point number के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो. दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए था ये. ओके, सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, इसके अंदर दो टाइप का डेटा टाइप आपका सपोर्ट करता है. वन इज कॉल्ड एज फ्लोट, ओके, and the second one is called as, does anybody know what is the second one? Double. Double float. Double. Okay, so we have got double. So ये 6 हो गए. Then उसके बाद floating के बाद एक आता है character. Okay, we have got character. So character के लिए char use करते हैं. And then for binaries, यानी 1 या 0 या 2 या false के लिए we use data type called as boolean. Okay, so ये कुछ data type है. कितने हो गए? 8 हो गए ना हमारे? Yeah. So these are the 8 different types of data type that is being supported in the primitive section that is being supported by Java. Okay, so we'll just take a look at the example. हाँ, अगर आपको range लिखना है, just write down the range as well, all of you. For byte, the space required will be, what will be the space required for byte? As the name suggests, it would take how many space? कितना स्पेस लगेगा एक बाइट को अगर स्टोर करना? 8 bytes. So it would take 1 byte, या बोला जाए तो 8 bit. It would take 8 bits for representing or for storing a byte. For short, it would take 16 bit. For short, it would take 16 bit. Okay. For int, it would take 4 into 8 is how much? 32 bits. 32 bits. For int, it would take 32 bit. For long, it would take 64 bit. Okay, so this is the bit or the memory space given to the following numbers. For float, the space is given as 32 bit. For double, it is exactly double of the float, which will be 64 bit. For characters, we have again 16 bit. Okay, for boolean,
इट डिपेंड्स ऑन JVM टू JVM, ओके। सो अगर आप लिनक्स का JVM यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग होगा। दो ये सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करता है, जनरली एक बिट में काम हो जाना चाहिए, यानी आप 0 लिख सकते हो 0 को रिप्रेजेंट कराने के लिए, यानी ट्रू को रिप्रेजेंट कराने के लिए आप 1 लिख सकते हो, और फॉल्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए आप बेसिकली 1 लिख सकते हो। सो ये तरीके से भी आप एक बिट में ही आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन जनरली द जनरल जितने भी JVM है ज्यादातर इसको 8 बिट देते हैं, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन JVM टू JVM, मैक वाला शायद ज्यादा देता है इसको, ओके। सो डिफरेंट OS का जो डिफरेंट JVM है, इट गिव्स द डिफरेंट स्पेस फॉर द रिस्पेक्टिव बूलियन, ओके। So it depends to JVM to JVM. बाकी सब is fixed. बाकी 7 primitive data types has a fixed limit, a fixed space that they give into the memory. But Boolean वाला जो part है, that is it depends on the JVM. Okay. So since it is 8 bit, the byte is 8 bit. 8 bit का मतलब अगर अगर मैं एक बिट अगर मेरे पास एक जगह है, यानी फॉर एग्जांपल इफ आई गॉट अ प्लेस, और उस प्लेस में मैं अगर एक ही बिट का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तो उसमें बेसिकली क्या स्टोर कर पाऊंगा, आई कैन स्टोर either it is 0 or it would be 1. If I've got two places, okay, and I want to store 2 bits into it, so that 2 bit can be 0 0, it can be 0 1, it can be 1 0, or it would be 1 1. These are the 4 possibilities that I have if I've got 2 bits for representing a number. If I've got 3 bits for representing a number, so what would be the possibility? How many possibility would I have? How many possibility would I have if I've got 3 bits for storing a number? It would be 0 0 0. कितने होंगे? It would be 2 raised to 3. 2 raised to 3 यानी 8. So it would be 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Then it would be 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Okay, so these are the possibility that we have for the 3 bits. So 3 bit का कहाँ से range start होगा? It would be starting from 0 and it would go to 7. Okay, for this it would be starting from 0, it would go to 3. For this it would be starting from 0 and it would go to 1. Similarly for 8 bit के लिए क्या होगा? It would be 2 raised to 8. 2 raised to 8 is nothing but it is 256. Okay, 256 का मतलब क्या होगा? It would be starting from 0 and it would go to 255. Okay, एक कम होगा. Okay, लेकिन हमें नेगेटिव नंबर को भी डिस्प्ले कराना, पॉजिटिव नंबर को भी डिस्प्ले कराना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द 256 by 2. 256 divided by 2 will give you how much? 128 I think. Okay, it would give you 128. So ये 128 का जो रेंज होगा, okay, so when we take the range of byte, the byte का range will be from -128 to -1, then 0, and then from 0 it will go to 127. So this is the range of a byte. तो बाइट लगभग इस रेंज में होगा. When we talk about short में क्या होगा, 16 बिट है. 16 बिट का मतलब क्या होगा, it would be how many possibility I would be having, how many numbers it would be having, it would be 2 raised to how much? 2 raised to how much? 16. 2 raised to 16 will be equal to 65,500 65536. So 65,536. These are the number that it will store. Okay, so ये कहाँ से कहाँ तक होगा? It would be from 0 to 65,535. Okay, so negative number कितना होगा, positive number कितना होगा, उसको करने के लिए just divide this number by 2. वहाँ से आपका लेके -1 तक जाएगा और फिर 0 से लेके उतना तक जाएगा. So somewhat like 33,000 का रेंज होगा इसका बेसिकली. ओके, सिमिलरली इंट में जब जाओगे तो इट वुड बी 2 raised to 32. 2 raised to 32 विल बी अ ह्यूज नंबर. सो बेसिकली इंट जनरली ज्यादातर हम नंबर्स में हमेशा इंट यूज करते हैं ताकि आप सेफर साइड में रहोगे. ओके, और अगर बहुत ही बड़ा नंबर अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आप लॉन्ग यूज करते हैं. ओके, सिमिलरली फ्लोट के अंदर वी हैव गॉट 2 डिफरेंट वेरिएंट. वन विल बी कॉल्ड एज अ फ्लोट एंड अदर विल बी कॉल्ड एज अ डबल. ओके, सो दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्लोट में कम स्पेस लेगा whereas डबल हैज अ ह्यूज स्पेस. जनरली आप ज्यादातर नंबर का कैलकुलेशन कैन बी डन इन फ्लोट ओनली, यू डू नॉट रिक्वायर डबल एट ऑल. लेकिन अगर प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है, ज्यादा नंबर, अगर आपको डेसिमल में ज्यादा वैल्यू चाहिए और आपको फाइंड आउट करना है कि डेसिमल में ये एंड तक कहाँ तक जाता है, तो उसके लिए आपको फिर डबल लेना पड़ेगा. ओके, और फ्लोट को अगर आपको स्पेसिफाई करना है, आपको एक्सप्लिसिटली एक एफ डालना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्लोट, मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना ए और उसका डेटा टाइप इज फ्लोट. तो फ्लोट ए
will be equal to, if I'm passing a value, let's say 3.14, ये वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ a को, तो यहाँ पे एरर दे देगा. ओके, क्यों? बिकॉज मैंने फ्लोट डिफाइन किया, तो यहाँ पे मुझे एक f लिखना इज कंपलसरी. सो वेन एवर यू यूज अ फ्लोट, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट अ f ओवर देयर. इन केस ऑफ डबल, नो नीड टू राइट d, बट यू कैन स्टिल राइट d, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर आपने नहीं भी लिखा तो एरर नहीं देगा. बट इन केस ऑफ फ्लोट, इट इज मैंडेटरी टू पुट अ f ओवर देयर. ओके, एल्स इट वुड बी ट्रीटेड एज अ डबल नंबर. सो फ्लोट के लिए आपको एक्सप्लिसिटली f लिखना इज कंपलसरी. ओके, फाइन. So what we'll do, we'll just take, we have noted down all the primitive data type. What we'll do is we'll just open a notepad and we'll just try to run the program and check कि variables के अंदर कैसे data को store किया जाता है, और फटाफट कुछ demonstration देखने की कोशिश करते हैं. Okay, so I will just open a notepad. Notepad open करने के लिए what is the thing? I need to open a run window. So run window के अंदर मैंने जा करके क्या लिखना है? I just have to write a notepad over there. Okay, नोटपैड में मैं जाऊंगा, प्रोग्राम लिखना यहाँ से चालू करूंगा. ओके, सो आर यू एबल टू व्यू माय स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes. सो आई स्टार्ट विद द प्रोग्राम. जावा में कोई भी प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है? Class. So I just write a class. This is my variable 2 का प्रोग्राम, so I will just write var exp2 second program. Okay, on variable. इस पे जाने के बाद क्लास, कोई भी जो आपका स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसको हमेशा क्लास का जो भी डेफिनेशन है आप इसके बीच में लिखते हो विद इन द कर्ली ब्रैकेट. सो आई मेक अ कर्ली ब्रैकेट एंड विद इन दिस आई वुड बी राइटिंग माय रेस्ट ऑफ द कोड. सो इसके अंदर मैं लिखूंगा पब्लिक मेन मेथड. हाउ टू डिफाइन द मेन मेथड? syntax for defining main method. The main method should be public, Public static then void. it should be Static void, static, static का गलत वर्ड है, static void, the name of the method is main, and I have to pass a argument into it. So argument with the string args. Just remember string का जो s होगा, it should be always what? String का s should always be what? Capital. Capital. So within main method, what I will be doing, within the main method, I would be defining the different variables that I want to create. So मैं एक variable ले लेता हूँ जिसका नाम है short. Okay. So I'll be defining a variable called as byte का मैं example देख लिया था. I'll be taking a variable called as short. I will just take the byte जो last time late join हुए थे या join नहीं हो पाए थे because I wasn't able to join on the regular time. I'll just take a quick example. So I'll be taking a variable called as byte a. Okay, and I would be passing a value. Let's take the value as 15. Okay, then I'll be taking a variable called as short. Okay, और उसको b नाम दे देता हूँ. Okay, और उसका data type short होगा, और उसको मैं let's take the value as 25. Okay, और मैं इसको दोनों को मैंने वैल्यू पास कर दिया. अब इन दोनों को प्रिंट करना है. इन ऑर्डर टू प्रिंट इट, व्हाट इज द कमांड दैट आई नीड टू राइट? व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन दैट आई नीड टू राइट फॉर प्रिंटिंग इन जावा? System System.out.println. out.println. ओके, println के अंदर मैं जाऊंगा और जो पार्ट मुझे डिस्प्ले कराना है तो वो मुझे इन्वर्टेड कोट्स में लिखना पड़ेगा. सो आई विल राइट द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ये क्या होगा, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, और मुझे वैल्यू प्रिंट करानी तो प्लस ए. ओके, सो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड देन सिंस इट इज एन इंस्ट्रक्शन इट नीड्स टू बी एंडेड विद अ सेमीकोलन. सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई हैव टू राइट डाउन द सिस्टम डॉट आउट डॉट println. Okay, and in this I would again print the value of b. I will just write down the value of b is, and over here I'll just write down the actual value. Okay, so are you guys writing the program with me, or am I the only one who is writing the program? Are you guys writing it down, right? Yes, sir. Okay, so प्रोग्राम मैंने लिख लिया. ओके, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है. इसे मैंने दो वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल को मैंने वैल्यू पास किया और उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो वी आर जस्ट चेकिंग व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट इज बीइंग सपोर्टेड. ये अगर क्लियर हो गया तो जितने भी आगे के न्यूमेरिक्स रहेंगे वो हम लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे. ओके, सो विल जस्ट गो टू फाइल, वी जस्ट सेव द प्रोग्राम. ओके, सॉरी मैंने कुछ तो गो टू फाइल, गो टू सेव. सेव में मुझे किधर सेव करना है? आई हैव टू गो इनटू द डी फोल्डर. Within the D folder there would be a Java program folder.
within the Java program folder, I will just write down the name of the class. Okay, just remember, always save the program with the name of the class. Okay, so name of the class is var exp2 exp2 dot आगे extension Java. Okay, so I will just save the program. Program save हो गया है कि नहीं, just check it out. Okay, so in order to check it out, just open the window, the PC, go to D drive. In D drive, go to Java program and check whether it has been opened or not. So yeah, var exp2, there is a file called as var exp2. Okay, with an extension of Java file. So what I will do is I will just minimize it. I will open. I have to run the program. In order to run the program, what we need to do? Again, open the run window. Open the command prompt. So command prompt को short form में we can call it as CMD. Okay. CMD open किया. CMD में currently we are in the C drive, so we have to go into D drive. So what we will do, we'll just write D and then colon and press enter. So now we are in D drive. Okay. So D drive में we have to go into a folder called as Java program. So in order to go into that folder, we have to change the directory. So for changing the directory, the command is CD. Okay. So CD, we have to go into the Java program folder. So CD, again press the tab button. I have already told you, always use the tab button. It would be automatically the characters is the names is taken automatically. So instead of typing it, all the things, it would be better if you use a tab button. Press enter. Now you're in the Java program folder. Now there will be a file over here called as var exp2. Check करना है तो just write down dir. Okay, so it will show all the content of the directory. Okay, I will just check it out. And अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, there is a var exp2. Okay, so there is a file. तो अब मुझे ये फाइल को रन करना है. In order to run it, I need to use a Java compiler. Okay, so Java compiler को use करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Java compiler का path set करना पड़ेगा. So in order to do that, what I need to do, right? Path set कैसे करते हैं? How to set the path? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? Path is equal to then C और उसका path करना पड़ेगा. C प्रोग्राम फाइल्स या तो कॉपी करो या तो डायरेक्टली आप टैब का बटन अगर आप यूज करने आता है आपको तो बड़े आराम से आपका हो जाएगा. तो C कोलन प्रोग्राम फाइल्स के अंदर there is a folder called as Java. So अरे यार ठीक. So I will just press J and Java आ जाएगा. Then उसके अंदर JDK folder होगा, उसके अंदर build folder होगा. Okay, so this all has been done with the help of tab button. Okay, I will just press enter. Okay, so the path has been set. Now मुझे compile करना है. Compile करने के लिए क्या होगा? Java C के अंदर के बाद मुझे प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा. So प्रोग्राम का नाम is var exp2. So I will just press the tab button. अब मैं इसको एंटर करूंगा. सो एंटर करने पे इट विल कंपाइल इट. सो या इट हैज बीन कंपाइल्ड. सो इसका मतलब देयर वुड बी अ क्लास फाइल व्हिच हैज बीन क्रिएटेड. सो dir डाल के मैं चेक करता हूँ क्लास फाइल बना है क्या. तो यस, देयर इज अ फाइल व्हिच हैज बीन क्रिएटेड कॉल्ड एज variable exp2 डॉट क्लास. ओके, सो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन गया. अब मुझे इस क्लास फाइल को रन करना है. सो इन ऑर्डर टू रन इट, आई विल बी यूजिंग द कमांड कॉल्ड एज java space the class name. So the class name is var exp2. Okay, so remove the class file dot class and just press enter. I've got the value of a as 15 and the value of b is 25. Is it clear? Is the program clear? Sir. Yes, sir. Okay, so what I want to show you is कि अगर मैं इसका रेंज बढ़ा देता हूँ. Okay, let's say अगर मैं इसका रेंज लेता हूँ 150 और इसका रेंज लेता हूँ 250. Okay, इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 150, दूसरे की वैल्यू लेता हूँ 250. Is this value acceptable या यहाँ पे एरर आएगा? Is the value acceptable or there will be some error that will be shown? प्रोग्राम बराबर है आपके हिसाब से? Will the program execute properly? No. Where will be the error? In the first case or in the second case? First case. Okay, so during this shot I will just save the program. फिर से इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ और चेक करता हूँ कि कहाँ पे एरर आएगा. जनरली द एरर विल बी इन द केस ऑफ बाइट. ओके, सो मैं कंपाइल करता हूँ. कंपाइल करने के लिए जावा सी. ओके, सो यहाँ पे मुझे एरर दे रही है. ओके, सो एरर में क्या दे रहा है कि बाइट पे देयर इज अ एरर बिकॉज इट इज अ इनकम्पैटिबल टाइप, क्योंकि वहाँ पे जो है लॉसी कन्वर्जन हो रहा है. लॉसी कन्वर्जन का मतलब क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है विच इज अ लार्ज नंबर दैट वी आर ट्राइंग टू स्टोर इनटू 8 बिट वेरिएबल. ओके, सो बेसिकली अगर इसका मतलब ये है
कि अगर 150 जो एक नंबर है, जो कि एक इंटीजर का टाइप का नंबर है, उसको आप कोशिश कर रहे हो कि आप उसको 8 बिट में भरने की कोशिश करो। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास 1 लीटर का बॉटल है और उसके अंदर आप 2 लीटर का पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बाकी 1 लीटर जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। सो सिमिलरली दिस सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ लॉसी कन्वर्जन व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम इन टू बाइट। ओके, सो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट द थिंग दैट आई कैन डू, I can write down over here. Either I can write down short, okay, or I can write int. ये दो चीज मैं लिख सकता हूँ, तो मेरा ये काम बड़े आसानी से हो जाएगा। Okay, so I'll just save the program. I will go to command prompt and again I will try to compile it. अभी compile हो जाएगा? Will the program get compiled now? I will just compile it. Yes, it has been compiled. Now I need to Yes, sir. run the program. So run करने के लिए Java Vary XP2. I'll just run it. Run करने के बाद the value is now 150 and 250. Fine. Now we'll check the condition of short as well. So मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 2 जीरो और लगा देता हूँ, तो ये 25,000 हो गया. So the range was like 32,000, तो एक और जीरो लगा देता हूँ. So it has become now 2,50,000. So I will just check it out कि ये क्या, अगर मैं ज्यादा नंबर देता हूँ तो भी इसके अंदर स्टोर कर पाएगा. So इसको मैं सेव करता हूँ. आपके हिसाब से स्टोर करेगा या एरर आएगा यहाँ पे? एरर आना चाहिए। एरर आना चाहिए, राइट? So I will just do what? I will again compile the program. ओके, सो कंपाइल करने पे मुझे एरर दे दिया शॉर्ट पे. तो मैं क्या करूंगा, अभी शॉर्ट जो है मतलब 2,50,000 नंबर को स्टोर नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल जस्ट राइट डाउन इंट ओवर देयर. ओके, सो इंट जो है वो काफी बड़ा नंबर है. ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दिया. सेव करने के बाद फिर से मैं कंपाइल करता हूँ. सो इट हैज बीन कंपाइल्ड. अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा. रन करने के बाद आई गॉट द वैल्यूज. ओके, सो बेसिकली इंट जो है वो ज्यादातर नंबर को हैंडल कर लेता है. ओके, सो लेट्स जस्ट चेक आउट कि कितना बड़ा नंबर को हैंडल कर लेता है. ओके, सो आई हैव एडेड 3 more zeros, so number is now become like yeah, it has become to 25 crore I guess. Yeah, so I'll just check it out, ये होता है कि नहीं. Okay, I'll just take a random number and just check it out. So compile किया, yeah, it has been compiled. So ये basically ये लेगा, इसके आगे और 2 जीरो लगा देता हूँ. Again save the program. सेमीकोलन उड़ गया क्या मेरा? Okay, so it has been showing error. Basically इसका मतलब मैं end यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता. इस error को अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Which data type I have to use? Long. लॉन्ग So I will just write down long over here. I will save the program and I will compile it. सेव नहीं किया क्या मैंने? क्या हो गया? long भी. It will increase the value of the units. Error क्यों दे रहा है यार? ये the number is too large. Okay, just try to long के लिए भी बड़ा है क्या नंबर? ओके, सो मेरे ख्याल से हम लोग लॉन्ग के भी रेंज के बाहर आ गए थे, वो नंबर ज़्यादा ही बड़ा था. ओके ओके, सो इट इज़ बीन प्रिंटिंग नाउ. ओके, सो बेसिकली क्या हुआ था कि जो नंबर हमने लिया था वो लॉन्ग के भी रेंज के बाहर था, बिकॉज लॉन्ग इज लाइक 2:64, तो उसका भी एक लिमिट है, तो वो नंबर से भी बाहर आ गए. ओके फाइन. सो वी हैव गॉट द डिफरेंट डेटा टाइप्स. नंबर का हमने सब देख लिया. We have started with byte, then we have gone to short, then we've got to int, and the last one is what is a long. So long has the largest range out of all the numbers. So generally जो सबसे basic data type जो use होता है नंबर में, वो हमेशा कौन सा use होता है? Int. Okay, always remember that. Fine. Is it clear?
ओके, नेक्स्ट इज आई विल बी यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? द डेटा टाइप इज कॉल्ड एज फ्लोट. ओके, सो फ्लोट ए आई विल बी राइटिंग एज 1.50. ओके, 1.50, और मुझे इसको प्रिंट करना है. ओके, सो आई विल जस्ट बी प्रिंटिंग इट. सेव कर लेता हूँ इसको. कंपाइल किया मैंने, तो क्या आया? एरर आया, राइट? So what is the error it is showing? कि the number is double and you're trying to store it into float. Okay, so मुझे अगर define करना है इसको float number, तो क्या करना पड़ेगा? I have to put what? Explicit f over there. Okay, so I have to write f over there. Okay, so अब मैं इसको save करूंगा तो ये compile हो जाएगा. Okay, now it has been compiled. अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ. रन करने के बाद I'll be getting the value as 1.5. Is it clear? समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Okay, so whenever there is a number, there is a floating point number. Just remember, अगर आपको float declare करना है, so वहाँ पे explicitly आपको f लिखना is compulsory. Okay, if it is a double, so let's say मैं double ले रहा हूँ, तो double b is equal to, अगर मैं कोई number ले रहा हूँ 2.222283. Okay, so इसको मुझे explicitly लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, so again I will do what? I will just write down system dot out dot print ln, और यहाँ पे मैं लिखूंगा the value of b is plus b. Okay, I'll just save the program and I'll just try to compile it. Okay, तो सेव किया मैंने प्रोग्राम को, कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो गया. अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने पे मेरा आउटपुट बराबर है. ओके, सो फॉर डबल you don't have to explain put anything over here. Okay, अगर आप चाहो तो आप पुट कर सकते हो d को, चलेगा, लेकिन f जो है जब भी आप फ्लोट को डिफाइन करना, आपको f वहाँ पे लिखना जरूरी है. ओके, so these are the data types for floating. Okay, floating numbers. So ये दो कवर हो गया, नंबर हो गया, फ्लोटिंग नंबर हो गया. The next is called as char. Okay, so char के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर के लिए I have to write what? char c, और इसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर इसकी जो वैल्यू होगी किस में पास होगी? विद इन द सिंगल कोट्स. ओके, विद इन द सिंगल कोट्स आई हैव टू पास द वैल्यू. सो इफ आई राइट a ओवर हियर, सो इट वुड टेक द वैल्यू a. तो मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू राइट डाउन दिस होल थिंग अगेन. सो कंट्रोल सी. So I will have to just print the value of c, and the value of the c will be capital A. Okay, so save करता हूँ मैं प्रोग्राम को. I will just compile it. कंपाइल करने के बाद इसको जब रन करूंगा, रन करने के बाद I've got the values of c as a. Okay, so always remember while putting the values into character, just remember that it should be put into a single quotes. Within the single quotes, character को आपको define करना पड़ेगा. Okay, and lastly is the boolean. Okay, so boolean let's say we are taking d, और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ true. I'll save the program, try to compile it. कंपाइल हो गया. अब इसको मैं रन करता हूँ. रन करने के बाद I've got the value as true. Is it clear? Okay, so for every number we have got range. So character के लिए the bit that is been given to you is 16 bit. Okay, memory का जो space दिया गया है character के लिए, it is 16 bit. Okay, so 16 bit का है, इसका मतलब वो क्या कर पाएगा? क्यों 16 bit दिया गया? You just have to store the characters, right? Character के लिए 16 bit क्यों लगेगा? Can anybody explain me for that? सवाल समझ में आया आपको? सवाल में ये पूछा है, मैं बोला है मैंने आपको कि जो कैरेक्टर है आपका, ओके, सो दैट कैरेक्टर इज टेकिंग 16 बिट. ओके, दैट कैरेक्टर इज टेकिंग 16 बिट, व्हिच आई हैव एक्सप्लेन ओवर हियर. ओके,
सो कैरेक्टर के लिए जो मेमोरी है वो 16 बिट है, यानी वो 0 to 65,536 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, यानी टोटल 65,536 कैरेक्टर को यूज कर स्टोर कर सकता है। तो इतने सारे कैरेक्टर क्यों स्टोर करना है? Why we are giving 16 bit space for character? Because Hexadecimal no, number. it does not only support hexadecimal. It supports the English language. It supports the different languages. Okay, so UTF-8 करके there are languages जिसके अंदर आपका या ASCII कोड बोला जाए, जिसके अंदर आपका अरेबिक आ जाता है, जिसके अंदर कोरियंस आ जाता है, जिसके अंदर मैंडेरियन आ जाता है, which is the Chinese language. Okay, it also includes the English. Okay, so these are the language based most widely language that is being supported by computer. So ये सारे लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 65,536 space दिया जाता है for storing the different types of characters. So I can store A, I can store B, I can store C, I can go up till Z. Then in Arabic I can start from Alif and I can go to Be, Te, Se, etc. And similarly for Mandarin I can use the respective characters. Okay, so it supports the different characters that we have in the world with the help of only 16-bit memory space. So that is why we have given 16-bit space for characters. Okay, and that is more than enough to represent all the characters in the world. Fine. Is it clear? Is the data type clear to you? Yes, sir. Okay. So basically अभी एक चीज जो आपको बताना है दूसरे प्रोग्राम पे आगे बढ़ने से पहले, वो ये चीज बताना है कि अगर मान लो गलती से आपका कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा, बराबर ना? बराबर। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद अगर आप जावा सी लिखते हो तो वो बोलता है यार ऐसा कमांड, ऐसा पता नहीं हमें जावा सी क्या होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से पाथ सेट करना पड़ेगा, राइट? एवरी टाइम आई हैव टू सेट द पाथ. Is it a good thing or it is a bad thing? It is hectic, right? Yes. Bad guy. Okay, so Yes. इसका अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका जो बार बार आप पाथ सेट कर रहे हो वो एक बार कर दो यार, खत्म कर दो यार इस चीज को. ओके, तो ये कहानी को खत्म करना है, तो ये चीज को खत्म करने के लिए दो तरीके हैं. ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ सेटिंग द पाथ परमानेंटली बेसिकली. सो ये दो तरीका है वो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं. और बाकी आगे का जो प्रोग्राम है, अब नंबर सीख लिया हमने, डेटा टाइप सीख लिया है, तो आगे हम धीरे धीरे फंक्शन को सीखेंगे, फिर टेम्परेचर से सेल्सियस, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे. बट वो करने से पहले हम ट्राई करेंगे कि पाथ को हम लोग कंपलसरी हमेशा सेट कैसे करके रखेंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑल ऑफ यू जिसका जिसके पास पीसी है, प्लीज ट्राई टू डू दिस नाउ ओनली. ओके, सो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा इस चीज के लिए. सो प्लीज डू विथ मी. ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन द विंडो, रन विंडो को ओपन करो एंड टाइप नोटपैड ओवर देयर. ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन अ नोटपैड. ओके, in the notepad what you need to do is write down path is equal to. ओके, पाथ इज इक्वल टू, फिर क्या करना है? वो जो पाथ है आपका जावा का, वो पाथ को आपको कॉपी करना है. ओके, सो वेयर इज द जावा पाथ? इट इज इन सी. सी में किधर है? प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में, बिन में. ओके, सो ये बिन में आपका देयर इज अ फाइल कॉल्ड एज जावा और जावा सी. सो अगर ये पाथ कॉपी करना है तो आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में जा करके आप ये जो आपका लोकेशन है वो लोकेशन को आप कॉपी कर लोगे. ओके, सो कॉपी. ओके, मेरा एज इट इज कॉपी नहीं करोगे, आपका जेडीके का वर्जन अलग हो सकता है तो वो गलत हो जाएगा. ओके, सो प्लीज गो इनटू योर कंप्यूटर एंड डू द चेंजेस ओवर देयर. सो ये पाथ मैंने कॉपी किया और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकर के जो आपका ये प्रोग्राम का फाइल में बंद कर देता हूँ. ये जो आपका अनटाइटल्ड नया नोटपैड है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा. सो आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. डन? समझ में आ गया? सबने किया ये वाला पार्ट? So what we have done now, right now, मैं ये जो चीज मैं कमांड प्रॉम्प्ट में बार बार लिखता था वो मैं एक नोटपैड में डाल दूंगा. So what I will do, I will just write down path over there and I will paste the path of the Java C over there. Clear है? समझ में आ गया आप सबको यहाँ तक? Is it understandable? Yes, sir. Okay. I will save this file. So फाइल को मैं सेव करूंगा. ओके, फाइल को सेव कहाँ पे करूंगा? ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे आपका जावा के ज्यादातर प्रोग्राम है वहीं पे आपको इसको फाइल को सेव करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट पाथ, या कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं. आई विल जस्ट गिव द नाम एज सेट पाथ. ओके,
always you remember this extension, okay? ये जो extension है आपका, it is called as a BAT, BAT, okay? So this BAT extension is nothing but we are creating a batch file, okay? What we are creating? We are creating a batch file, BATCH file, okay? ये batch file create करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस फाइल का नाम .bat से आपको देना पड़ेगा, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ. I'll just save the file with an extension of .bat, okay? I'll just go to my window. I'll just go to my the Java folder. So it is in D, and I will just check it out कि वहाँ पे bat file create हो गया है कि नहीं. Okay, so there is a set path and यहाँ पे लिखा है Windows batch file. दिख रहा है आप सबको? Is it visible, all of you? Yes, It is sir. visible. Okay. अब मैं क्या करूँगा? मैं अपना command prompt open करूँगा. मेरा ज़्यादातर प्रोग्राम D में रहता है, मैं D में बड़े आराम से जाऊँगा. Okay. D ड्राइव में गया मैं, D एंड कोलन. ओके, सो D ड्राइव में गया. D में जाने के बाद मैं जावा प्रोग्राम में जाऊंगा. ओके, जावा प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे अगला स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई नीड टू डू व्हाट? आई नीड टू डू व्हाट? path, आई नीड टू सेट द पाथ. सो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा? सेट पाथ जो मेरा फाइल है. ओके, सेट पाथ. मैं टैब का बटन दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली बैच फाइल आएगा. विल जस्ट प्रेस द एंटर. एंटर प्रेस करते ही क्या आ गया? ऑटोमेटिकली पाथ हैज बीन सेट. समझ में आया? Yes, sir. ओके, ये होते ही अब मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट राइट डाउन द जावा सी कमांड. जावा सी के बाद आगे का लेट से वेरिएबल वाला या हेलो वाला प्रोग्राम करके देख लेते हैं वापस. सो हेलो डॉट क्लास को मैंने रन किया तो जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनपुट है. वन सेकंड. सर बिन फोल्डर कॉपी नहीं हुआ आपका. अरे हाँ यार, बट ऐसा कैसे हुआ यार? ठीक है, हाँ मैंने शिट. ओके फाइन. ओके, सो यहाँ पे स्लैश बिन एक डाल देता हूँ मैं. ओके, आई विल सेव द फाइल. आई विल डू दिस स्टेप अगेन. या अब मैं जावा सी स्पेस हेलो डॉट जावा फाइल कंपाइल हो गया. मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ. हेलो, तो हेलो वर्ल्ड मेरा प्रोग्राम आ गया. सो मैंने अगर इसको वापस क्लोज कर दिया गलती से, अब फिर से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो मुझे वो पाथ बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है. मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ जाऊंगा यहाँ पे डी ड्राइव में जाने के बाद मैं बेसिकली डी ड्राइव में जाने के बाद आई विल जस्ट गो टू दिस फोल्डर कॉल्ड एज जावा प्रोग्राम, एंड ओवर हियर आई जस्ट नीड टू राइट सेट पाथ डॉट बैट, एंड वो ऑटोमेटिकली अपना पाथ सेट कर देगा. इज इट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. ओके, ये जो तरीका जो मैंने आपको सिखाया, इससे बहुत सारा वायरस भी आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, अगर आपको जैसे आपके घर में अगर आपको भाई या बहन से बदला लेना है, अगर आपको लैपटॉप नहीं दे रहे तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. सो बेसिकली अगर मैं आप सब लोग अगर कमांड प्रॉम्प्ट अगर ओपन करते हो, आई जस्ट ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. आई विल जस्ट डिविएट फ्रॉम अ टॉपिक अ लिटिल बिट. ये एक वायरस कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा. तो अगर जैसे शटडाउन -f करके कमांड है, आई विल जस्ट राइट डाउन शटडाउन. तो इट शोज मी डिफरेंट ऑप्शन. ओके, सो इसमें से एक ऑप्शन है /f करके. ओके, सो इफ आई राइट डाउन शटडाउन /f और एंटर करूंगा प्रेस, तो क्या करेगा? जो भी मेरे रनिंग एप्लीकेशन है ना, उस रनिंग एप्लीकेशन को इट वुड फोर्सफुली टर्न इट डाउन. सो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ या कुछ ऐसा मेरा डेटा है, बैकअप है, और उसको मेरे को बंद करना है, किसी भी हालत में बंद करना है, तो मैं शटडाउन /f से उसको फाइल को सेव करता हूँ. ओके, मैं मतलब बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे लिखा कमांड शटडाउन /f और मैंने एंटर प्रेस किया है ना, तो ये मेरा पीसी जो है वो फोर्सफुली शटडाउन हो जाएगा. मेरे परमिशन नहीं पूछेगा कि ये प्रोग्राम को क्लोज करना है, कि ये करना है, कि वो करना है. वो ऑटोमेटिकली सिस्टम को शट डाउन कर देगा. समझ में आ गया आपको ये स्टेप समझ में आपको? Yes, sir. ये कमांड का मतलब समझ में आया ना. अब मैं क्या करूंगा? ये कमांड जो था मेरा, इस कमांड को मैं अपने बैच फाइल में लिख दूंगा. ओके, क्या लिखूंगा बैच फाइल में? आई विल जस्ट राइट डाउन शट डाउन ओके /f.
और इसको सेव कर दूंगा कोई भी नाम से virus.bat से। ओके, आई विल सेव द फाइल एज virus.bat। ओके, ये virus.bat जो है मेरा बैच फाइल जब बन जाएगा, बैच फाइल बनने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन जाऊंगा मैं और यहाँ पे बैच टू exe कन्वर्टर ले लूंगा मैं, बैच टू exe कन्वर्टर। ओके, सो बैच टू exe कन्वर्टर या तो आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो या तो आप डाउनलोड कर लो एक सॉफ्टवेयर को। तो वो क्या करेगा, बैच फाइल से exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा। exe फाइल मतलब एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो देयर इज अ एप्लीकेशन दैट आपने क्रिएट किया जिसका नाम होगा virus.exe। ओके, सो बेसिकली आपने एक वायरस बनाया जो क्या करेगा, शट डाउन कर देगा आपके सिस्टम को। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. सो बैट से exe में कैसे कन्वर्ट किया, विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज बैट टू exe कन्वर्टर। अगर ये आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। ओके, सो ऑनलाइन जा करके आप उसको डायरेक्टली आपको ड्रैग करेंगे और वो ड्रॉप करके आपको ऑटोमेटिकली .exe फाइल दे देगा। ये करने के बाद देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज स्टार्टअप। ओके, देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज स्टार्टअप। सो मेरे ख्याल से किधर रहता है वो, जस्ट चेक इट आउट। स्टार्टअप। in the open window, in the run window, just write down shell :startup। ओके, और आप जब एंटर प्रेस करोगे तो एक ये जगह पे आपको मतलब बेसिकली प्रोग्राम के अंदर इस लोकेशन का एक विंडो ओपन होगा और इस लोकेशन के विंडो पे अगर आपने डाल दिया वो फाइल virus.exe। ओके, तो जब भी आपका भाई, आपकी बहन या आपके मॉम डैड कोई भी, ये मैं ऐसा बोल नहीं रहा आप लोग उन पे बदला निकालो, लेकिन एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका सिस्टम, आप जो भी भाई बहन है आपके सिस्टम जब भी स्टार्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली, कभी भी कोई भी सिस्टम अगर स्टार्ट होता है ना, तो इस फोल्डर वाले के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो पहले रन होगा। तो whenever your system will get started, स्टार्टअप फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट होगा दैट वुड गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो उसके अंदर जो फाइल है उसका नाम है virus.exe और उस virus.exe के अंदर क्या है कमांड, shutdown/f। तो वो आपके सिस्टम को फोर्सफुली ऑफ कर देगा। तो वो स्टार्ट करेंगे ये ऑफ करेगा, वो स्टार्ट करेंगे ये ऑफ करेगा। सो कभी भी सिस्टम जो है आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा बेसिकली। सो स्टार्ट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गो इनटू दी कमांड प्रॉम्प्ट मोड, वहां से उस मोड में जाना पड़ेगा बायोस की सेटिंग में जा करके, और फिर जा करके इस फोल्डर में आकर के उस फोल्डर को, उस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा विद अ कमांड कॉल्ड एज dn। ओके, इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्मॉल वायरस जो मैंने आपको अभी सिखाया। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ जावा बट थोड़ा डेविएट हो गया इसके लिए। सो एक तरीका ये था आपका, बैच फाइल के थ्रू आप पाथ को सेट कर सकते हो। ओके, आई कैन सेट द पाथ विद द हेल्प ऑफ बैच फाइल। डन विद दैट पार्ट? इज इट क्लियर? सर एक बार वाला और एक बार समझाओ। ओके, सो पाथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार पाथ सेट करना है तो मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, basically I will just open the run window। I've opened the run window में जाने के बाद I will just write down a notepad। I will create a notepad over there। notepad के अंदर मुझे सिर्फ क्या लिखना है, path लिखना है is equal to, और जो मेरा वो path का जो लोकेशन था जहाँ पे क्या है जावा सी है, वो लोकेशन का एड्रेस मुझे कॉपी करना है। तो वो लोकेशन कहाँ पे है, इट इज इन सी ड्राइव। आई विल गो टू द सी ड्राइव। Within C drive, it is in program files। Within program files, there is a folder called as Java। Java के अंदर JDK के अंदर bin। So ये वाला जो पाथ है आपका, ये पाथ को आप कॉपी कर लोगे। ओके, ये पाथ को कॉपी करने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसको सेव करने के टाइम पे, फाइल सेव करने के टाइम पे, आई वुड जस्ट सेव इट विद द नेम ऑफ setpath.bat। ऑलवेज रिमेंबर, मैं इसको किस नाम से सेव करूंगा, कोई भी नाम से मैं दे सकता हूँ। आई कैन राइट डाउन जस्ट पाथ भी दे सकता हूँ, लेकिन एक्सटेंशन जो है आपका वो .bat होना चाहिए। आई हैव टू क्रिएट अ विंडोज बैच फाइल। ओके, क्योंकि विंडोज बैच फाइल को आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर सकते हो, बाकी कोई फाइल को आप रन नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई आई हैव टू क्रिएट अ बैच फाइल। तो बैच फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसका एक्सटेंशन .bat करना पड़ेगा। सो अब क्या बन गया, बैच फाइल बन गया है। ओके, अब बैच फाइल बन गया तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू जस्ट सिंपली स्टार्ट माय कमांड प्रॉम्प्ट। मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है। सो डी में है, सो डी के अंदर cd, आई विल गो इनटू अ फोल्डर कॉल्ड एज जावा प्रोग्राम।
उस फोल्डर के अंदर मैं चला गया, अब मुझे पाथ सेट करना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाथ इज इक्वल टू ये सब लिखने से अच्छा और उधर फिर से जाके कॉपी पेस्ट करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, सेट पाथ, आई विल जस्ट प्रेस द टैब बटन, ऑटोमेटिकली सेट पाथ डॉट बैट आ गया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके अंदर का जो भी फाइल रहेगा वो रन हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइल के अंदर क्या लिखा था, पाथ सी कोलन, यानी जो चीज मैं लिखता था वो ऑटोमेटिकली उस फाइल के अंदर मैंने स्टोर करके रख दिया। तो अब मैं यहाँ पे जावा सी लिखता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं बताएगा कि ये कमांड वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि यस जावा सी इज बीन आइडेंटिफाइड। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये तो दूसरा तरीका था। ओके, दूसरे तरीके में भी प्रॉब्लम ये है कि बार बार फिर भी आपको सेट पाथ करना ही पड़ेगा बेसिकली, वो बैट फाइल को आपको रन करना ही पड़ेगा। एक और तरीका है कि आप इस चीज से पूरी तरह से हमेशा के लिए आप बच सकते हो। ओके, सो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई विल जस्ट कैंसिल इट। ओके, मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पाथ था ना आपका जावा सी वाला, ये Sir, पाथ, सॉरी, sir, environment variable. हाँ हाँ हाँ, वही 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 बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। अगर आपको परमानेंटली सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, जो जावा का लोकेशन है उस लोकेशन को आप कॉपी कर लोगे। ओके, सो आई हैव कॉपीड इट। ओके, आई हैव कॉपीड इट। अब मैं क्या करूंगा, सी माय कंप्यूटर में जाऊंगा। ओके, आई विल गो इनटू द माय कंप्यूटर, आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज में। ओके, आई विल गो इनटू द प्रॉपर्टीज, आई विल जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड आई विल गो इनटू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आते ही यहाँ पे क्या है, एडवांस सिस्टम सेटिंग। आई विल जस्ट गो इनटू द एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन आई विल गो टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, एनवायरनमेंट वेरिएबल में अगर आपके कंप्यूटर में देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड एज पाथ तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको न्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक पाथ सेट किया है फॉर माई एसक्यूएल, बिकॉज आई एम यूजिंग माई एसक्यूएल, तो उसके लिए ऑलरेडी पाथ सेट किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ऑलरेडी एक पाथ सेट किया हुआ है अपने एक वेरिएबल, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए। अब मुझे जावा के लिए सेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद अब वो थर्ड लाइन पे है। थर्ड लाइन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा का लोकेशन यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सो आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। क्या पेस्ट करूंगा, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 13.0.2 बिन, और इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे भी। ओके, नाउ द एनवायरनमेंट वेरिएबल हैज बीन सेट। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई विल जस्ट मिनिमाइज इट। मिनिमाइज करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं अब जावा सी रन करके देखता हूँ कि मतलब कहीं पे भी ये आइडेंटिफाई कर पाता है क्या। आई विल प्रेस इट एंड ये यस इट इज आइडेंटिफाइंग नाउ। पहले ये क्या बताता था, जावा सी नो सच कमांड इज एग्जिस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल टू इट, पहले ऐसे लिखा था। अब मैं कहीं पे भी जाऊँ, इधर आई विल गो इनटू डी ड्राइव, अब यहाँ पे भी मैं जावा सी लिखता हूँ तो भी वो आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। डी ड्राइव में अगर मैं सीडी जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाता हूँ, वहां पे जावा सी लिखता हूँ, ये यहाँ पे भी इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। ओके, सो जावा सी का पाथ जो है हमने परमानेंटली सेट कर दिया। तो इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? इज दिस स्टेप Yes, क्लियर? sir. डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन कि समझ में आ गया आपको? Sir, please explain it again. ओके ओके फाइन। सो बेसिकली ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम सिस्टम वेरिएबल्स को चेंज करना। ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेटिंग अ सिस्टम वेरिएबल्स। सो सिस्टम वेरिएबल्स को अगर आपको सेट करना है, ओके, तो सिस्टम वेरिएबल्स को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गो टू योर माई कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाना है आपको, वहां पे जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। ओके, व्हेन यू गो टू द प्रॉपर्टीज में जाने के बाद गो टू द एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। आपके माई कंप्यूटर में जाना है, माई कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में देयर वुड बी अ सेटिंग कॉल्ड एज एडवांस सिस्टम सेटिंग। क्लिक ऑन द एडवांस सिस्टम सेटिंग, वहां पे नीचे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए रहेंगे। ओके, सो गो टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, इफ ऑलवेज सी दैट इफ पाथ वहां पे लिख, पाथ करके कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। ओके, अगर आपका नया कंप्यूटर है, अगर उसके अंदर पाथ करके कोई वेरिएबल ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन न्यू, यहाँ पे पाथ का वेरिएबल आप डालोगे पाथ ओवर हियर। आई जस्ट राइट डाउन पाथ ओवर हियर। ओके,
और यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू मैं डालूंगा सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन वाला, वो पाथ का लोकेशन मैं यहाँ पे डालूंगा। लेकिन ऑलरेडी मेरे उसमें पाथ का वेरिएबल क्रिएटेड है, ओके, बिकॉज माई एसक्यूएल ने क्रिएट यूज कर रहा है और साथ में मेरा जो विंडोज वाला है वो भी यूज कर रहा है, ये दोनों मेरा यूज कर रहा है। सो आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन पाथ, तो ये एडिट मोड में चले जाएगा। ओके, सो इट इज एडिटिंग द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एडिटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में मुझे क्या करना है, पहला जो मेरा पाथ है वो यूज कर रहा है माई एसक्यूएल, वही वेरिएबल पाथ नाम का वेरिएबल मेरा माइक्रोसॉफ्ट भी यूज कर रहा है। अब वही वेरिएबल को मुझे यूज करना है अपने जावा के लिए। तो जावा के लिए मेरा ऑलरेडी डिफाइन नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड लाइन पर जाऊंगा या फोर्थ लाइन होगा या फिफ्थ लाइन होगा, मैं उस पर क्लिक करूंगा और वहां पे जाकर उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। क्या आपका पाथ किसका, जावा का। तो जावा का पाथ कहाँ पे, इट वुड बी इन सी, विद इन सी देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज प्रोग्राम फाइल्स में जावा में जेडीके में बिन में, यहाँ पे आपका ये जो पाथ है, आपका ये जो एड्रेस है, ये लोकेशन है, इस लोकेशन को आप आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। आफ्टर पेस्टिंग इट, just press OK and then press OK, your environment variable has been set। okay, once it has been done, आप कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, हमेशा कभी भी, अगर इसको क्लोज भी कर दिया, ओके, आई विल जस्ट स्टार्ट द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन। तो जब भी मैं ओपन करूंगा, आई विल जस्ट राइट डाउन जावा सी, ओके, या फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, डी ड्राइव में जाने के बाद जावा प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ मैं, ओके, जावा प्रोग्राम में गया मैं। अब मुझे पाथ सेट करना होता है नॉर्मली, बट मैं पाथ सेट किए बिना डायरेक्टली मैं जावा सी लिखता हूँ और हेलो डॉट जावा को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो इट इज एग्जीक्यूटिंग, अब जावा हेलो कर दूंगा मैं, तो मैं इसको रन भी कर सकता हूँ। सो इट इज रनिंग, सो आई डोंट हैव टू सेट द पाथ बार बार। सो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड फॉर परमानेंटली। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. So that's the end. Okay, so in the next class, while coming to the next class, हम लोग नॉर्मल मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल्स पे कैसे वर्क करना है, क्या करना है, वो थोड़ा बहुत हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे करने के लिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, डज एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? No, sir. Okay, thank you guys, thank you so much, you can leave now.